سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا بیان، کہتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں شوگر مافیا کا معاملہ دب گیا ہے، شوگر مافیا کے پیچھے ہوں اور منطقی انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے، کہتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں شوگر مافیا کا معاملہ دب گیا ہے۔ عباس شبیر سے جانیں گے۔ جی عباس، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا؟ دیکھیں، جو گزشتہ روز کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی تھی، کرونا صورتحال، جسٹس فائز ویزا کیس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس میں کور کمیٹی اراکین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ تاثر ہے کہ شاید شوگر سکینڈل جو ہے وہ دب جائے گا، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ یہ غلط سمجھ رہے ہیں، شوگر مافیا کا معاملہ کبھی بھی نہیں دبے گا، یہ معاملہ شوگر مافیا کے پیچھے کھڑا ہوں، منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچا کر رہوں گا۔ شوگر مافیا سے حکومت نہیں عوام متاثر ہوئے ہیں۔ تو کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم نے تمام تر وہ جو ریزرویشنز تھی اراکین کی کہ شاید یہ معاملہ دبنے والا ہے، شاید یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ان فیوچر، لیکن وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ معاملہ کسی صورت بھی نہیں دبے گا، شوگر مافیا کے پیچھے ہوں، منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچاؤں گا، چونکہ اس معاملے کی وجہ سے، شوگر مافیا کی وجہ سے کسانوں کو، عام لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے، اس لیے عام لوگوں کا نقصان دیکھتے ہوئے اس معاملے کے پیچھے ہوں اور اس معاملے کو کسی صورت بھی نہیں دبنے دوں گا۔ تو وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو کسی صورت دبنے نہیں دوں گا۔ بہت شکریہ عباس شبیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری رپورٹ پر مزید سٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس دیے کہ آج ہی دلائل مکمل کر لیں۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل، بتائیے گا کہ آج دلائل مکمل ہو جائیں گے؟ اٹارنی جنرل نے حکومت کی طرف سے کیا دلائل دیے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے حکومت کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے اپنا پورا موقف بیان کیا تھا کہ یہ ساری کارروائی جو ہے کسی تعصب پر مبنی نہیں ہے، اور یہ بتایا تھا کہ اس میں حکومت کے اپنے لوگوں، اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے نام شامل ہیں، جس پر جواب الجواب دلائل کے لیے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مختوم علی خان نے عدالت سے وقت مانگا اور ساتھ یہ استدعا کی کہ ہمیں کچھ سٹے آرڈر مزید دیں، ہم کچھ دن تک اس پر جواب الجواب دلائل دیں گے۔ اس پر عدالت نے مزید سٹے آرڈر میں توسیع دینے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ کا یہ کہنا تھا کہ مزید سٹے آرڈر نہیں دیا جا سکتا، اگر آپ نے جواب الجواب دلائل دینے ہیں تو آج ہی دے لیں۔ اس پر پھر پیر کے لیے درخواست کی گئی مختوم علی خان کی جانب سے کہ ہمیں صرف پیر تک کا سٹے آرڈر دیں، کل اتوار ہے، پرسوں ہم آگے دلائل دے دیں گے۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے یہ استدعا بھی مسترد کر دی اور یہ کہا کہ ابھی صرف حکومت اداروں کو خط لکھ رہی ہے، 2 دن میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو جائے گی، لیکن ایگزیکٹو کا جو معاملہ ہے اس میں ہم مداخلت مزید نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل کو کہ ہم نے آپ کو سٹے آرڈر مشروط دیا تھا کہ آپ چینی سستی بیچیں گے، لیکن اس پر عمل بھی نہیں ہو سکا۔ اب چینی کی قیمتوں کا تعین کرنا عدالتوں کا کام نہیں ہے، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ رہے اور مزید سٹے آرڈر بھی نہیں دیں گے۔ اس پر شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکلاء کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے جو چینی تھی وہ آفر کی تھی حکومت کو کہ 60,000 میٹرک ٹن چینی آپ 70 روپے کے حساب سے ہم سے خرید لیں، لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ ہماری آفر ابھی بھی کیا گیا اور آفر موجود ہے، سٹے آرڈر دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سہیل رشید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، حکومت نے بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی اٹھا لی۔ تربت اور گوادر کے سوا ملک بھر سے بین الاقوامی پروازوں کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پروازوں کی بحالی کا نوٹم جاری کر دیا ہے اور 250 کے قریب پروازیں پاکستان آئیں گی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد ہوگا۔ کارگو، خصوصی اور سفارتی پروازیں بھی آپریشن جاری رکھ سکیں گی۔ حکومت کا بڑا فیصلہ، بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی۔ آج سے تمام غیر ملکی مسافر اور چارٹر پروازوں کو پاکستان میں دوبارہ آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف نے سما سے گفتگو میں یہ خوشخبری سنائی۔ 250 کے قریب پروازیں ہر ہفتے اڑیں گی، اندر آنے والی جو پاکستان آئیں گی، اور اسی طرح باہر جانے والی جو ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق باہر جانے کا نمبر ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے۔ جو پاکستان میں آنے والی پروازیں ہیں وہ تقریباً 250 کے قریب ہیں، لیکن تمام ایئر لائنیں جو پاکستان آتی ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ آپریشن میں صحت سے متعلق تمام پروٹوکول پر عمل درآمد سخت ہوگا۔ معید یوسف نے یہ بھی بتا دیا۔ صرف ان مسافروں کی ٹیسٹنگ ہوگی جن میں کوئی علامات ہیں کورونا کی، باقی بغیر ٹیسٹنگ کے اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن تمام مسافروں کو 14 دن گھر میں سیلف آئسولیشن میں قرنطینہ کرنا پڑے گا۔
बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के साथ कार्गो, खुसूसी और सिफारती परवाज़ें भी ऑपरेशन जारी रख सकेंगी। तमाम एयरलाइंस को ऑपरेटिंग कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। गवादर और तुर्बत के लिए परवाज़ों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। हुकूमत का इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से मुश्किलात का मुकाबला करने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों का अज़्म व हौसला काबिल फ़ख्र भी करार दे दिया। अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोलने का इक़दाम ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए किया जा रहा है। उनकी वतन वापसी का खैर मक़दम करते हैं और उनकी हर मुमकिन मदद भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कोरोना की वबा के दौरान बैरून मुमालिक में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अपने हमवतनों के लिए मिसाली सखावत लायक तहसीन है। और अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। तो कराची में सिंध सरकार लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद ना करवा सकी। मुतासरा इलाके सील होने के बावजूद खुले हैं। हफ्ते को सख्त लॉकडाउन को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट हासिल करेंगे। खुर्शीद आलम जो कि नागिन चौरंगी पर हैं और साथ सावरी गुलिस्तान जौहर से, और सलमान अहमद जमशेद रोड से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं खुर्शीद आलम का। खुर्शीद आलम, बताइएगा कि लॉकडाउन तो कर दिया गया है और स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा, हुकूमत नाकाम हो गई है, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं? देखिए, मैं ज़िला वस्ती में जिस जगह मौजूद हूँ, ये UC 14 फातिमा जिन्ना कॉलोनी की आबादी है, जहाँ 4 बड़े रहायशी प्रोजेक्ट हैं। अनारकली कॉम्प्लेक्स, बाबे इकबाल, बाबे गाजी और कंट्री टावर, जहाँ मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। मुख्तलिफ थानों की पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स की नफरी मौजूद है, और सबसे अहम बात यह कि जो रहायशी प्रोजेक्ट के जो लोग हैं वो अब इन 2 दिनों में ना दफ्तर जा चुके हैं, ना दफ्तर जा सके हैं, और ना ही अपने किसी और कारोबार की तरफ गए हैं। यहाँ सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला हुआ है और सिर्फ दूध की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी तमाम दुकानें बंद हैं। जो दुकानदार आए थे उनको बता दिया गया कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन है। इलाके में यहाँ पर सूरत हाल ऐसी कि जहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग हर वक्त मौजूद रहते थे, अब यहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा है। रुकावटें खड़ी करके उन रास्तों को बंद किया गया है। अलॉटीज़ जो इस फ्लैटों के हैं, सिर्फ उनको ज़रूरी काम के लिए नीचे आने की, दूध लेने या मेडिकल स्टोर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा गैर मुतल्लिक़ अफराद को या मेहमानों को या किसी सैर व तफरी के हवाले से किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर ये बता दूँ कि अनारकली कॉम्प्लेक्स में 272 फ्लैट हैं, बाबे आरिफ में 272 फ्लैट हैं, बाबे इकबाल में 500 और कंट्री टावर में 450 फ्लैट हैं। मजमूई तौर पर ये तकरीबन 1500 के लगभग अलॉटीज़ हैं कि जो अपने अपने घरों में 2 दिन से मौजूद हैं, और कम से कम इन 2 दिनों में यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नजर आ रहा है। जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नजर आ रहा है, इलाके भी सील हैं और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी इस वक्त जारी नहीं है। खुर्शीद आलम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलमान अहमद का रुख करते हैं जो जमशेद रोड पर मौजूद हैं। सलमान अहमद, नागिन चौरंगी पे तो हमने देखा कि इलाके सील हैं और SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। जमशेद रोड पर क्या सूरत हाल है? हुकूमती इकदाम पर और जितनी भी हिदायत की गई हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं? देखिए माहम, ऐसा लगता है कि सारा जो पुलिस नफरी है वो लगा दी गई है नागिन चौरंगी पर, लेकिन खुर्शीद आलम जो बता रहे हैं नागिन चौरंगी की सूरत हाल देखकर यही लगता है कि सारी पुलिस नफरी वहीं पर मौजूद है। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूँ ये ईस्ट के इलाके हैं। जहांगीर रोड और जमशेद क्वार्टर की तमाम गलियां जो है वो सिर्फ नुमाइशी खनातें लगाकर, हमने देखा गया है कि नुमाइशी खनातें लगाकर बंद की गई हैं। इसके अलावा अंदर गलियों में सब कुछ जारी है, नकलो हरकत भी जारी है। रिहायशी जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, बगैर मास्क के निकल रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं गलियों से, अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ तक के जो गलियों के अंदर कारोबार भी मुकम्मल तौर पर जारी है। लोग जो है वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी आराम से खरीद रहे हैं। नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमल दरामद कराने के लिए पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है, इंतजामिया मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो रिहायशी हैं उन्होंने लगता है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको सिर्फ मजाक में ले लिया है। और मजाक क्यों ना बनाएं, क्योंकि जब इंतजामिया ही यहाँ पर नहीं होगी जो कि अमल दरामद कराए तो आप सूरत हाल भी देख सकते हैं। मेरे अकल में भी एक शामियाना लगा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ
नुमाइशी नजर आता है, क्योंकि लोग यहाँ से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये जमशेद क्वार्टर और जहांगीर रोड की तमाम गलियों की सूरत हाल यही है, और कराची के जो दिगर इलाके हैं वहाँ पर भी हमने विजिट किया है, वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह है। लोग आराम से जा रहे हैं और आ रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं मास्क लगाए बगैर, और ये हसास रुकावटें लगाई गई हैं और किसी भी तरह का अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरी भी एहतियात नहीं कर रहे, इंतजामिया भी मौजूद नहीं है, तो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। साथ साबरी की जानिब रुख करते हैं जो गुलिस्तान जौहर पर मौजूद हैं। साथ यहाँ क्या सूरत हाल है और शहरी एहतियात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इलाके जो कि सिर्फ नुमाइशी सील हैं या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? महम, यहाँ पर सूरत हाल कुछ अलग ही है। यहाँ पर नुमाइशी सील का भी कोई ऐसा मंजर देखने में नहीं आ रहा, ना तो किसी किस्म की कोई रुकावट लगी है, ना कोई कैंप लगाए गए हैं, ना ही कोई नफरी हमें इतनी ज़्यादा नजर आई। मैं इस वक्त जिस मुकाम पे मौजूद हूँ ये ज़िला शर्की है, और ज़िला शर्की में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के जो है वो केसेस हैं इस ज़िले में। यहाँ पर जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, ना सिर्फ ये कि ये मुकाम जो है वो हॉट स्पॉट करार दिया गया था, यहाँ पर हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई थी, बल्कि तमाम तर दुकानें भी, आज तो वैसे भी हफ्ता है और ये जो एरिया है ये हॉट स्पॉट भी और आज मुकम्मल लॉकडाउन के ज़िम्मे में भी आता है, पर यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी देखने में नहीं आ रही। लोगों की आमदोरफ्त जारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, इवन के जो है वो यहाँ पर रेस्टोरेंट हमने खुला हुआ देखा, यहाँ पर गोलगप्पे लोगों को खाते हुए हमने देखा। लोगों की बासानी जो है आमदोरफ्त यहाँ पर चल रही है, कोई नफरी हमें नजर नहीं आई। आमदोरफ्त चल रही है और स्मार्ट लॉकडाउन को सबने मजाक ले लिया है। तो कराची के कई इलाकों में जो है SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, इलाके सील किए गए हैं, जबकि दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। और लाहौर में भी सूरत हाल यूं की तूं है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के वाक़यात आम हैं। खिलाफ वर्जी के खिलाफ 679 मुकदमा दर्ज करके 1500 से ज़्यादा दुकानें सील की जा चुकी हैं। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर में हफ्ते और इतवार के रोज़ लॉकडाउन बरकरार रहता है, इसलिए आज और कल शहर की तमाम मार्केट्स, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। अगर इस हफ्ते और इतवार के लॉकडाउन की बात की जाए तो गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 600 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके 1700 से ज़ायद दुकानों को सील किया है। और अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के 53 मकामात को सील करके शहरियों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया था। इस हवाले से काम का ये कहना है कि इन सील शुदा इलाकों में शहरियों को हर तरह का रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। अशियाए ज़रूरिया की आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं आने दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जानिब से मज़ाहमत और बाज़ मकामात पर इंतज़ामिया और पुलिस के एहलकारों के साथ बहस व मुबासा रिपोर्ट हुआ है। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि शहरी इस लॉकडाउन में जो है वो SOPs पर अमल दरामद के लिए भरपूर ताउन करें। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के स्मार्ट लॉकडाउन की शहरियों ने स्मार्ट अंदाज में खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल आहद से। जी अब्दुल आहद, बताइएगा तो फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन पर कैसे अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फैसलाबाद सिटी के 10 से ज़्यादा मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का इनेकाद किया गया। तो उस स्मार्ट लॉकडाउन को शहरियों ने भी स्मार्ट तरीके के साथ उसकी वायलेशन शुरू कर दी है। कुछ इस तरह से कि जहां पर जिन इलाकों को बंद किया गया है उन इलाकों से शहरी अपनी मदद के तहत बैरियर्स को हटाते हैं, अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को वहाँ से निकालते हैं और दोबारा उस बैरियर को वहीं पर सेट कर देते हैं। ना तो वहाँ पर कोई पुलिस एहलकार नज़र आता है, ना ही सिविल डिफेंस का कोई अमला मौजूद होता है, ना ही ज़िला इंतज़ामिया का वहाँ पर कोई गश्त होता है। तो इस तरह स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो फिल वक्त तो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहा है। इस वक्त भी मैं जंग बाज़ार में मौजूद हूँ, ये इलाका भी स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर शामिल होता है, मगर इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं कि पीछे भी सारा बाज़ार खुला हुआ है। अगर हम रहायशी इलाकों की बात करें, जिस इलाके के अंदर 10 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए उन इलाकों को सिलेक्ट किया गया है स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, मगर फिर भी वहाँ के जितने भी मकीन हैं बआसानी बाहर भी आ रहे हैं उस इलाके से और इस इलाके के अंदर भी जा रहे हैं। मुल्क में खाद महंगी होने के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया मुतहरिक हो गया। यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। तहक़ीक़ाती इदारों ने वज़ीर आज़म को मुमकिना बहरान से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। टिड्डी दल के मारे काश्तकारों के लिए एक और बुरी खबर। अब यूरिया खाद के लिए किसानों को धक्के खाना पड़ सकते हैं। आटे, चीनी और पेट्रोल के बाद अब खाद बहरान की तलवार सर पर लटकने लगी। खाद की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क में यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई।
गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र खाद महंगी होने के आसार पैदा हुए तो मुख्तलिफ कंपनियों ने खाद जखीरा करना शुरू कर दी। डीलर्स भी काले धंधे में बराबर शरीक। तहकीकाती इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म को खत के जरिए आगाह कर दिया गया। खत में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बर वक्त क्रैक डाउन की तजवीज़ भी दी गई है। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों ने गैस की कीमत में 100% तक इजाफे की दरख्वास्त दी है, जिस पर ओगरा आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएंगे कराची के 3 बड़े अस्पताल कौन चलाएगा। सिंध सरकार ने विफाक से अस्पताल हवालगी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अगर ऐसा ना किया तो सिंध हुकूमत के किए गए अखराजात वापस किए जाएं। वज़ीर सेहत ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ख़त लिख दिया है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल, बताइएगा ख़त का क्या मतन है? देखिए, वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से वफाकी मुआविन ख़ुसूसी हैं ज़फ़र मिर्ज़ा, जिनको ख़त लिखा गया और कहा गया है कि तीनों अस्पताल जिना, NICH और NICVD, इन तीनों अस्पतालों को वफाक जो है वापस सिंध हुकूमत को दे दे, क्योंकि सिंध हुकूमत ने इनके लिए बजट मुख्तस किया है 16 अरब 20 करोड़ का, जबकि वफाक ने सिर्फ 9 अरब 90 करोड़ रुपए रखे हैं, जिसमें उनका कहना है कि इस बजट में जो वहाँ मरीज आते हैं और जो तिब्बी सहूलियात देते हैं वो भी पूरे नहीं किए जा सकते, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो सिंध हुकूमत में ने इस पे खर्च किए थे वो इसके खर्च से भी कम है। तो इस हवाले से उनका कहना था कि कोरोना की वबा में सिंध हुकूमत बहुत काम कर रही है, और वफाकी हुकूमत से उनका कहना है कि जो पैसे उन्होंने खर्च किए सिंध हुकूमत ने 2011 से लेकर अब तक, वो उनको वापस किए जाए, क्योंकि एक बड़ी रकम उन्होंने अरबों रुपए की रकम मरीजों के इलाज के लिए और यहाँ इसकी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए, तिब्बी सहूलियात को खर्च किए हैं। इसी हवाले से उनका कहना है कि या तो कोरोना बेहतर बनाने के लिए खर्च किए गए। बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भारत से आने वाली मानसून हवाएं टिड्डी दल को दोबारा पाकिस्तान ला सकती हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक जुलाई में टिड्डी दल 6 गुना ताकत के साथ हमलावर हो सकता है। देखते हैं लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। टिड्डी दल के हमले कम हुए हैं, मगर खतरा भी बाकी है। पंजाब हुकाम ने जुलाई में टिड्डियों के एक और हमले की पेशगोई कर दी। कहते हैं मानसून बारिशों के आगाज के साथ ही टिड्डी दल दोबारा आ जाएगा। हमले को रोकने के लिए पंजाब ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। जुलाई में हमें खदशा है कि लोकेस्ट चोलिस्तान में दाखिल होगी। उसके अरेंजमेंट्स अल्लाह के फजल करम से PDM ने मुकम्मल कर लिए हैं। माइक्रोन मशीनें हैं हमारे 12 हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और 20 का हमने ऑर्डर दिया, जो कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक वो अल्लाह ताला के फजल करम से में पहुंच जाएंगी। हुकाम का कहना था कि दीगर इकदामात के साथ साथ किसानों को टिड्डियों को पकड़ने के लिए तरगीबात भी दे रहे हैं। ये टिड्डियाँ हुकूमत खरीदेगी। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से 20 रुपए फी किलो के हिसाब से एक ऑफर की गई है लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो एक अच्छा एक है जहाँ पे आबादी होती है। PDM में हुकाम ने यह भी दावा किया कि मानसून बारिशों की वजह से मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। राजनपुर में एक बार फिर टिड्डी ने हमला कर दिया है। बलूचिस्तान के रास्ते आने वाले टिड्डी दल ने शहरी आबादी समेत करीबी देहात में फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। महकमा ज़राअत और रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इलियास गबोल की रिपोर्ट में देखिए। राजनपुर में टिड्डी दल की यलगार एक नहीं बार बार शहरी इलाकों में भी उड़ान जारी है। मोटरसाइकिलों पर सफ़र करने वाले भी परेशान। बलूचिस्तान के रास्ते आने वाले लश्कर ने हज़ारों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक टिड्डी दल के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन जारी हैं, जिसमें महकमा ज़राअत, रेस्क्यू और रेवेन्यू की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और बात करेंगे मौसम की, तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान के नौजवानों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे ठार पानी में डुबकियां लगाकर खूब मौज मस्ती हो रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहरों से गिरदुरवा में गर्मी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज भी जो मुल्तान का दर्जा हरारत है वो 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मुल्तान के शहरी हैं उन्होंने ट्यूबवेल का रुख कर लिया है। बच्चे बड़े सब भी ट्यूबवेल में डुबकियां लगा के जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम करने के लिए इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर ट्यूबवेल का रुख कर ली। उनका कहना है कि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत है
काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। उसके साथ जो लोड शेडिंग है वो उसका दौरान भी बढ़ गया। तो जैसे मुल्तान के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इंजॉयमेंट के एक ही तरीके के वो यहाँ पर ट्यूबवेल के रुख कर लें और यहाँ पर आके ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाकर मौज मस्ती करें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चित्राल की वादी अशबार में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खदशा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा ने मरासला लिख दिया है। तो चित्राल की वादी अशबार में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इतवार से मंगल तक वादी में दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है। ये दर्ज है मरासले में और ग्लेशियर से बनने वाली झीलें भी पानी से भर चुकी हैं, ये भी दर्ज किया गया है इस मरासले में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा ने मरासला लिख दिया है। चित्राल की वादी अशबार में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा ने ये मरासला लिख दिया है। इतवार से मंगल तक वादी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोएब मलिक को अहले खाना से मिलने के बायस दौरा इंग्लैंड के लिए खुसूसी छूट दे दी है। शोएब मलिक पाकिस्तान टीम के हमरा जेट तैयारी में सफ़र नहीं करेंगे बल्कि 24 जुलाई को इंग्लैंड में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता 5 माह से अपनी अहलिया सानिया मिर्ज़ा और बेटे अजहान मलिक से नहीं मिल पाए। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि मामले पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से राबता किया था, उन्होंने इजाज़त दे दी है। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगी। डर्बीशायर में 14 रोज़ तक करंतना में वक्त गुजारेगी।